Yes, sir. Good afternoon, everyone. Yesterday we were doing the in the last class we were doing the perfect competition. So the perfect competition kya tha? Where there are large numbers of buyers and sellers selling a homogeneous products, where and the prices are determined by the industry, not by the firm, and industry determines the prices according to the demand and supply curve. So in the perfect competition, the firms जो हैं वो price taker है, they are not the price maker, and the price was determined by the industry. Industry determine करती है prices according to the demand and supply conditions of the economy. So upward in the short run, we did the equilibrium in the short run as well as in the long run. Short term equilibrium was like firm was suffering supernormal profit, normal profit, or sometimes suffering from the losses. But in the long run, the firm is having only the normal profit, right? And supply curve under perfect competition short run में किया था, that was the upward sloping rising part of the marginal cost curve. And shutdown point भी किया था उस दिन हमने. Shutdown point was the minimum point of the average variable cost. Okay, so this was the brief regarding the last lecture, and now we are going to start with the supply curve under perfect competition in long run. Long run is a period of where we have only variable factors, right? जहाँ पे सिर्फ variable factors and there is no fixed factor in the long period. So long period में the firm जो है वो that means the firm जो है पूरा का पूरा unit shift कर सकती है. So there are three types of the returns to scale: the increasing returns to scale, decreasing returns to scale, and the constant returns to scale. Okay, accordingly we are having the supply curve. So in the long period, the supply curve is determined according to the industries. If we let me start with the constant cost industry. So 3 है तो 3 ही आएंगे. Constant returns to scale means constant cost industry. यहाँ पे cost curve जो है industry के constant रहते हैं. ठीक है. So the industry will determine prices according to demand and supply. Okay, so this was the price determined by the industry. So सॉरी थोड़ा सा फ्लैट नहीं बना, बट आप जो है प्लीज स्केल से बनाना सो दैट कि ये पूरा का पूरा फ्लैट बने, राइट? It's clear, right? So this was the revenue curve under the, this is the equilibrium. Okay, now let's suppose the demand जो है वो shift हो गई in the long period. ये वाली जो डायग्राम है ना, दिस इज ऑप्शनल, चाहे आप इसको नहीं भी बनाओ तो भी चलेगा. ठीक है, सो मैं सिर्फ आपकी मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बना देती हूँ कि फर्म्स जो हैं इस हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट्स करती हैं. ठीक है, सो यहाँ पे एक कॉस्ट कर्व बन गया, राइट? ये आपसे ऑप्शनल रहेगी. दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व. ठीक है, now you can see
at this particular prices, the firms are earning supernormal profit. See, firms are earning supernormal profit in the long run. And you know, in the long run, agar profit ho raha hai, supernormal profit. So let me see. Now you can see the supernormal profit, right? So long run में supernormal profit हो रहा है firms को, तो क्या होगा? जो है new firms can enter in the industry. ठीक है, when new firms will enter in the industry, तो क्या होगा कि आउटपुट जो है एक्सपैंड होगी, द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड्स. ठीक है, यहां तक जो है चाहे कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है, तीनों में जो है यहां तक जो है वो सेम रहेगी डायग्राम. ठीक है, तो डिफरेंस कहां पे आएगा? ये सप्लाई कर्व से. यहां तक एक्सप्लेनेशन सेम है क्योंकि यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं फर्म को, राइट? सो व्हेन द न्यू फर्म्स एंटर, right, when the new firms enter, the supply curve will shift upwards. Okay, so E1 will be the new equilibrium point. ठीक है, so इस केस में you can see the prices will remain same क्योंकि now क्या हुआ है, हमारी आउटपुट एक्सपैंड हो गई. our output expands, right? So now the new equilibrium will be somewhere here. ठीक है, for the firm, right? So now by joining these points E, ये जो मैं रेड लाइन बना रही हूं, by joining E and E1 is nothing but your long run supply curve of industry. ठीक है, under the constant cost industry ये सप्लाई कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा जैसे अभी है. ठीक है, अगर इंक्रीजिंग है कॉस्ट इंडस्ट्री तो ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा और डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. ठीक है, okay, so this was the constant cost industry. Now let me I'll show you the increasing cost industry as well. Now this is for the increasing cost industry. ठीक है, so again the demand curve and the supply curve. Prices, ठीक है, initial prices, sorry, ठीक है, this is the initial AR and MR for the firm. This is for the industry and this is for the firm. ठीक है, so initial equilibrium. Now with the increase in demand, demand curve shifts upwards. So this is the new equilibrium point. ठीक है, so the now firms are earning supernormal profit. तो लॉन्ग रन है, पहले इनिशियल फर्म को क्या हो रहे थे? नॉर्मल प्रॉफिट. नाउ फर्म्स आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे? लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू. सी, दिस वाज द इनिशियल फर्म जो है इस यहाँ पे सेल कर रही थी एट दिस पॉइंट. Now firms are selling at this point. Equilibrium MR equals to MC. ठीक है, so
this now firms are earning super normal profit. ठीक है, इंडस्ट्री आउटपुट क्या थी, ये लाइंस इट्स ऑप्शनल, आप बनाओ या ना बनाओ, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती है, जैसे मैंने लास्ट डायग्राम में नहीं बनाए थे, ठीक है, तो मत बनाना, एज यू विश लाइक, बट जो डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स हैं वो जरूर बनेंगे. ओके, नाउ फर्म्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, तो न्यू फर्म्स विल एंटर इन द लॉन्ग रन एंड द इंडस्ट्रियल आउटपुट विल एक्सपैंड. ठीक है, when industrial output will expand and there is a increasing cost industry as well. जब increasing cost industry है तो that means cost curves will also increase. ठीक है, so the new supply curve will be this one. S1 is your new supply curve. So equilibrium जो है वो ये वाले पॉइंट पे है. Sorry, this is P, P2. ठीक है, so now this is E1, the output will expand. Now we will have a new जो हमारे basically curves है AC and MC, because increasing cost industry है, तो AC MC जो है वो इस वाले cost curve से ऊपर होंगे. That means at this particular point, मैं इसको red से बनाती हूँ, आप थोड़ा सा ये डिफरेंस अच्छे से बना लेना, सो आपको अच्छे से क्लियर, मैंने रेड से बनाए हैं एंड आपको अच्छे से दिख जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट हो कलर हो जाएगा. ठीक है, CMC and this new equilibrium will be somewhere in between Q and Q1. ठीक है, so now this is the new equilibrium point. Sorry, this one is the new equilibrium point. Now जब हम E और E1 को ज्वाइन कर देंगे, we will get long run supply curve of industry. Now you can see ये upward sloping है. Last case में आपने देखा था वो parallel to x axis था. Now it's upward sloping. Upward sloping का मतलब क्या है? तो इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा. ठीक है, सो नाउ यू कैन सी क्लियरली व्हाट exactly the red line is, the increasing cost industry, upward sloping supply curve of the industry. ठीक है, so then last जो हमारा है वो है decreasing cost industry का है, decreasing cost industry. बच्चे साथ साथ ड्रॉ करते जाओ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मैं आपको पहले बता दूं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इट्स बेटर है कि आप साथ साथ ड्रॉ करो और जो कुछ प्रॉब्लम्स है अभी ले लो, एंड दिस इज द वेरी लास्ट क्लास, सो इट्स बेटर कि आप जो है इसको साथ ही कंप्लीट कर लो. दिस इज द इनिशियल इक्विलिब्रियम. ठीक है, so initial equilibrium, demand curve shifts upwards because with the expanding demand, यहां तक मैंने पहले ही बोला था कि ये सेम रहेगा. ठीक है, so now the supply curve shifts upwards क्योंकि न्यू इंडस्ट्री सॉरी यहाँ पे थी इनिशियल इक्विलिब्रियम, अब हमारी यहाँ पे आ गई है इक्विलिब्रियम एट P1. ठीक है,
So now you can see firms are earning supernormal profit. जब firms supernormal profit earn करेंगे तो new firms will enter. जब new firms enter होंगी तो हमारी output expand हो जाएगी. Output expand होगी तो firms की जो supply है वो shift हो जाएगी. That means firms can more in supply. Now this is decreasing cost industry, so that means cost curve will decline. Now this will be my new supply curve. ठीक है, this was the initial equilibrium point. And याद रखना initial point और supply curve increase होने के बाद वाले point को join करना है for now because decreasing cost industry है. So sub prices will decline, cost will decline, and the output will expand in the firm. So we are having new cost curve. So existing output will expand. सिर्फ difference क्या है? I told you कि more than half of the diagram will remain same, चाहे कोई भी है, but सिर्फ ये E2 पॉइंट का फर्क है. कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में ये इसी लाइन पे है, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में ये इन बिटवीन E1 एंड E के था. नाउ डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में ये E से भी नीचे चला जाएगा. नाउ दिस ग्रीन सॉरी मैंने I did a small mistake. Let me redraw the diagram. So this is the new one. ठीक है, so this is the D and D1. D1 and by joining these 2 points, sorry, E1 and E2. So by joining these 2 points, E and E2 is supply curve. Now you can see it's decreasing cost industry, increasing cost industry, decreasing cost industry, yeah, increasing returns to scale. So this was the initial ARMR. ठीक है, and this is the initial ARMR and this is the with the demand increases. With the demand increases, and this is the point जहां पे आपकी जो दिस इज द पॉइंट जहां पे ये आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया ACMC, and these are यहाँ पे these are the new cost curves. Let me draw it with the green. This is the decreasing cost industry.
ओके बच्चे, मैं करा देती हूँ। कंफ्यूजिंग नहीं है बेटा, बस इसको ध्यान देना है। मैं आपको जैसे जैसे स्टेप बताती हूँ अब वैसे वैसे साथ साथ कॉपी पे ड्रॉ करते जाओ, ठीक है? फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एंड आई मीन दैट, ठीक है? आप एक बार बस साथ साथ ड्रॉ करते जाओ, फिर देखना, देन यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दिस, राइट? मैं एक दोबारा से बना देती हूँ, ठीक है, सो दैट आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैं साथ ही समझा दूंगी बाकी दोनों कैसे ड्रॉ होंगे, ठीक है? इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज द बस आपने ध्यान देना है कि कौन सी इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व है, ठीक है? इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री एक स्टूडेंट ने बोला, तो मैं इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री ही बना देती हूँ। कांस्टेंट और डिक्रीजिंग आप साथ, यहाँ कुछ स्टेप्स सेम है। ये डिमांड कर्व साथ साथ प्लीज ड्रॉ करते जाओ। ये दिस वन इज द सप्लाई कर्व, ओके, एंड दिस इज द इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है? नाउ डिमांड इंक्रीजेस, demand increases, demand curve will shift upwards, ठीक है? So now the new equilibrium point कहां पे है मेरा? ये रहा, ठीक है? Okay, so this one is the new equilibrium point. ये P है, ये P1, ठीक है? This is the E and E1. यहाँ पे आप एक कॉस्ट कर्व बना लो, यहाँ पे एक कॉस्ट कर्व बन गए। AC बनाने की जरूरत है और MC को थोड़ा एक्सपैंड करने की जरूरत है। रीजन इज दैट कि MC ऊपर कट करना चाहिए, ओके? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये चाहे कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है या डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, यहाँ तक तीनों में सेम आएगा, ओके? सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा? जो न्यू सप्लाई कर्व पे। अगर कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है तो आपको इस न्यू सप्लाई कर्व इस पॉइंट पे बनाना है जहां पे पुरानी प्रीवियस प्राइस के साथ आपका डिमांड कर्व, न्यू डिमांड कर्व कट कर रहा है, ठीक है? ये पॉइंट। अगर इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है तो इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में कहीं होना चाहिए। अगर डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है तो इस पॉइंट के नीचे कहीं पे भी न्यू सप्लाई कर्व कट करना चाहिए। आई रिपीट, ये सिर्फ डॉट्स बना रही हूं, आप सिर्फ डॉट से समझना। अगर इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है तो ये E1 और ये वाला जो पॉइंट ग्रीन पॉइंट पे डॉट है, इसके बीच में न्यू सप्लाई कर्व होगा। अगर कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है तो इस ग्रीन पॉइंट के ऊपर जो है वो सप्लाई कर्व होगा, मींस यहाँ पे ये कट करेगा। एंड अगर डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है तो इस ग्रीन पॉइंट के नीचे कहीं पॉइंट पे न्यू सप्लाई कर्व, दैट मींस यहाँ पे कट करेगा, ठीक है? सो राइट नाउ आई एम ड्राइंग फॉर द इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, जो किसी स्टूडेंट ने बोला। सो दिस इज द सप्लाई कर्व। नाउ द न्यू सप्लाई कर्व विल बी somewhere in between E1 and this point, ठीक है? सो मींस P1 और P के बीच में वो न्यू पॉइंट कट करना चाहिए, ठीक है? तो दिस इज द E2, ठीक है? सो नाउ न्यू प्राइस विल बी P2 इन द मार्केट। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि न्यू फर्म्स एंटर किए थे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की वजह से, ठीक है? सो
यहाँ पे न्यू कॉस्ट समवेयर कहीं पे भी आप बना देना, न्यू कॉस्ट कर्व कहीं पे भी समवेयर टुवर्ड्स दिस साइड. नाउ बाय ज्वाइनिंग, क्योंकि हमारे लिए मेन ये पॉइंट्स हैं, बाय ज्वाइनिंग ई, जो मैं रेड लाइन बना रही हूँ अभी, ई एंड E2 is nothing but your supply curve of industry, right? अब क्लियर है बेटा? आयुष, यशवी, क्लियर है बेटा? सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे है, आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, डायग्राम बनाओ, सबसे पहले ग्राफ्स बना लो, डिमांड कर्व, न्यू सप्लाई कर्व एंड न्यू डिमांड कर्व. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स बना लो. देन देखो आपने इंक्रीजिंग बनाना, डिक्रीजिंग बनाना या कांस्टेंट बनाना, उसी के अकॉर्डिंग आप, ये इनिशियल है, ठीक है, और ये आपका न्यू है. अगर इंक्रीजिंग बनाना है, सो दिस इज द रफ, मैं आपको बना, अगर इंक्रीजिंग बनाना है तो समवेयर इन बिटवीन कट करेगा, अगर कांस्टेंट बनाना है तो इस पॉइंट पे कट करेगा, और डिक्रीजिंग बनाना है तो समवेयर नीचे कट करेगा. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ. I hope it's clear now. Last topic है इसी का, that is the allocative efficiency. Allocative efficiency से केस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बात बोल देती हूँ कि आपके पास किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, टिल द टाइम मैं एलोकेटिव एफिशिएंसी करा रही हूँ, आप साथ साथ टाइप करते जाओ, बिकॉज आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम. तो साथ साथ आप लिखते जाओ, सो दैट के मैं आपको इमीडिएटली कराने के बाद आपकी क्वेरीज का रिप्लाई कर दूं. ठीक है, साथ साथ आप क्वेरीज जो है वो टाइप करते जाओ टिल द टाइम मैं एलोकेटिव एफिशिएंसी करा रही हूँ. राइट, सो you there are perfect competition and imperfect competition in the market. Allocative efficiency सिर्फ perfect competition के केस में होता है. Allocative efficiency होता क्या है? Allocative efficiency means कि जहां पे सोसाइटी में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इस तरह से हुए हैं कि कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों ही मैक्सिमम है, मींस दोनों ही सेटिस्फैक्शन लेवल पे मैक्सिमम है. सो इसका मतलब क्या है कि देयर इज सम ऑफ कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस इज द मैक्सिमम. ठीक है, सो हम, अगर आपको ध्यान में हो तो हमने शायद किया था, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, व्हाट ई एक्चुअली पेज. प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर रिसीव बाय सेलिंग द प्रोडक्ट एंड व्हाट ही एक्चुअली गेट्स. ठीक है, सो द ट्रांसफर अर्निंग, तो दैट मींस कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों मैक्सिमम है. सो दैट मींस कंज्यूमर भी एलोकेटिव एफिशिएंट है एंड प्रोड्यूसर आल्सो इज एलोकेटिव, मींस कंज्यूमर भी मैक्सिमम पोजीशन पे एंड प्रोड्यूसर भी maximum position पे है. So let me draw this diagram also, and this is for in, you can see this is the demand curve and this is the supply curve. ठीक है, this is okay, so this is the price. ये बिल्कुल दोबारा ही बना देती हूँ.
This is the demand curve and this is the supply curve. ठीक है? This is the prices. These are the prices prevailing in the market. Okay. So यहाँ पे हमारे पास क्या है? Normal profit, long period curves. And this is the MC, right? So this is the quantity of the firm. This is for firm because firms are price taker, not the maker. ठीक है? And this is the quantity of industry. So मैं इन दोनों को distinguish कर रही हूँ ये small q से and capital Q से. ठीक है? Consumer surplus. What consumer is willing to pay and what he actually pays is nothing but the consumer surplus. So that means P A E is nothing but your consumer surplus. ठीक है? Producer surplus. What the producer is willing to sell means किस price पे वो willing to sell and what he actually gets is nothing but the producer surplus. So BPE is nothing but your producer surplus. This red shaded area is producer surplus and okay. So and this green shaded area is consumer surplus, sorry. ठीक है? So the consumer surplus plus producer surplus equals to your total surplus, which is maximum in case of the perfect competition. So the perfect competition is allocative efficient market जहाँ पे consumer surplus and producer surplus जो है वो maximum होते हैं. ठीक है? So let me see questions. When I know where demand and supply Japneet, I'm not getting your question actually. When I know where demand and supply curve increase or decrease, this is what I understood is that you want to ask कि जो हमने पीछे supply curves किए थे उसमें demand curve और supply curve कब increase होगा कब decrease होगा ये पूछ रहे हो तो maybe that was by the assumption that if the demand increases the industry will expand. तो सिमिलरली मैंने तो डिमांड डिक्रीज का केस कराया भी नहीं, वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है. ठीक है? तो उसमें एग्जिस्टिंग फर्म्स विल एग्जिट इन द मार्केट. इफ आई एम अगर मैं आपका क्वेश्चन ठीक से समझ पाई हूँ तो मुझे तो ये लगा कि आपने वो जो पीछे हमने इंडस्ट्री के डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व किए थे, यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग दैट एंड दैट्स व्हाई उसका तो यही बच्चे है कि वो हम अजम्पशन से लेके चलते हैं कि डिमांड सबसे पहले देखो जब भी नॉर्मल कंडीशन तो वही रहेंगी ना जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. अगर नॉर्मल नहीं चेंज होगा तो हमारी मार्केट क्यों चेंज होगी, राइट? सो अगर पहला स्टेप क्या होता है कि डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीज होने से क्या हुआ कि प्राइसेस इंक्रीज कर गई, राइट? जब प्राइसेस इंक्रीज कर गई तो न्यू फर्म्स को दिखा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है उस इंडस्ट्री में. जब वहां पे उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिख रहा है तो वो न्यू फर्म्स कैन एंटर इन द मार्केट. तो एग्जिस्टिंग सप्लाई जो है वो एक्सपैंड हो जाएगी. तो फर्म्स की जो सप्लाई है ना, जो इनिशियल वो पहले सप्लाई कर रहे थे न्यू वाली, उससे थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि न्यू फर्म्स के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. तो न्यू फर्म फिर उसी वजह से सप्लाई कब जो है वो शिफ्ट हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई इंडस्ट्री का शिफ्ट होगा, राइट? सो दैट्स व्हाई जो है हमारी इंडस्ट्री एक्सपैंड करती है. सो आई होप एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता आप क्या पूछना चाह रहे हो जपनीत, बट if I understood your question correctly then you please reply कि मैंने ठीक से reply किया कि नहीं. Otherwise retype your question please. So this was all about the perfect competition.
and I just ask you guys ke whether you have any question or query, then you can ask me किसी भी टॉपिक पे, मतलब इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। शुभांगी बेटा, पीपीटीज तो आपने देखा होगा कि मैंने कभी पीपीटी से पढ़ाया ही नहीं है, इनफैक्ट कभी नोट्स से भी नहीं पढ़ाया। नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं ये इसकी वेबसाइट पे, एसओएल की वेबसाइट पे माइक्रो बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स एग्जैक्टली सेम है, अदरवाइज मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। मैं थोड़ा सा बिजी चल रही थी आज, आई एम लिटिल फ्री इन द इवनिंग, सो आई विल डू इट टुडे बाय द टुडे ओनली, राइट। टू मार्केट्स नहीं है बेटा, एक ही मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरी मार्केट है ही नहीं। परफेक्ट कंपटीशन मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दी थी, मैंने आपको कराया नहीं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के अलावा कुछ और नहीं बताया, उसमें सिर्फ एक ही मार्केट है। आपने देखा होगा सिलेबस मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है आपके पास। एनीथिंग एल्स गाइस? Anything else guys? Any question, any query? अपनी प्लीज आपने बच्चे रिप्लाई नहीं किया, कोई बात नहीं बच्चे। Anything else guys? Any question regarding any topic? पहले आपका क्वेश्चन की क्वेरी करना चाह रही थी, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन यू फ्यू थिंग्स। हाँ बच्चे मैं बता रही हूँ। सी आपके क्वेश्चन पेपर में ओबी है ना, सो देयर विल बी 4 क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट 5 मींस 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। सो द टोटल जो है शॉर्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा क्वेश्चन, 20 या 25 मार्क्स का पर क्वेश्चन होगा आपके में। अगर 20 के होंगे तो 5, अगर 25 के होंगे तो 4, राइट। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। एंड कोई भी क्वेश्चन हो XYZ किसी भी टॉपिक से हो, आपको जो है आंसर जो है नीट एंड क्लीन करना है। डायग्राम्स जो हैं क्लियरली ड्रॉ करनी है। प्लीज बच्चे आप इतने इमेच्योर नहीं हो कि आपको इतना बताना पड़े कि डायग्राम्स को पेन से बनाना है या पेंसिल से, ये आपको खुद से पता है। बट आपको मैं ये कहूंगी जिससे मर्जी बनाओ, पेन से बनाओ पेंसिल से बनाओ, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, बट नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। नीट एंड क्लीन एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर एग्जामिनर को सामने ही आपकी डायग्राम देख के सारा आंसर पता लग जाए, ऐसी डायग्राम होनी चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड टेबल्स ओनली। मींस इतना क्लियरली आपको उसको बनाना है, ठीक है। हर चीज को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करो, कोई भी क्वेश्चन आए हर क्वेश्चन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करो, उसके बाद जो मेन क्वेश्चन उन्होंने पूछा वो लिखो, एंड लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखो, चाहे वो 1 या 2 लाइंस का ही क्यों ना हो, ठीक है। वेटेज ऑफ ऑल द पेपर क्वेश्चंस, लेट मी टेल यू वेटेज। बच्चे सबसे ज्यादा वेटेज परफेक्ट कंपटीशन से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते। देखो बच्चे आपको 5 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल करने हैं, मैं 5 क्वेश्चन की एग्जांपल लेके चलती हूँ, वैसे 4 भी हो सकते हैं क्योंकि ओबी में एक क्वेश्चन कम किया था बेसिकली। आई डोंट नो कि इस आपके भी आएगा, 4 आएंगे कि 5 आएंगे, आई एम नॉट श्योर, दैट्स व्हाई। सो 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो बच्चे आपके पास कितने यूनिट्स हैं? पहला है डिमांड एंड सप्लाई का यूनिट, सेकेंड यूनिट है आपका कंज्यूमर थियोरी का, थर्ड यूनिट है आपका प्रोड्यूसर थियोरी का, ठीक है। ऑन एन एवरेज आपको हर में से 2 क्वेश्चंस पक्का आएंगे, ठीक है।
सो 2 क्वेश्चंस आएंगे, तो 2 क्वेश्चंस आप लगा के चल लो कि ऑन एन एवरेज, मतलब ये नहीं है कोई फिक्स रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, मैं आपको तरीका बता रही हूँ। तो हर क्वेश्चन में, हर चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं अगर, तो दैट मींस दे हैव इक्वल वेटेज। डिमांड में से 2 क्वेश्चंस आपको आएंगे ही आएंगे, बिकॉज डिमांड में से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इंडिफरेंस कर्व में से बच्चे बहुत इंडिफरेंस कर्व में से क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में से भी आपको 1 या 1.5 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, 1 या 1.5 क्वेश्चन आ सकता है ऑन एन, बाकी इंट्रोडक्शन वगैरह में से 1 क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। सो दैट मींस द ईच एंड एवरी चैप्टर हैव सम वेटेज, ठीक है। मैं आपको कुछ चैप्टर्स आपको मैं बोलूंगी कि आपको 100% करने ही करने हैं। उनमें से एक है डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि डिमांड आ गया तो सप्लाई तो ऑटोमेटिकली आ गया। इंडिफरेंस का एंड परफेक्ट कंपटीशन, इनमें से आप एक छोटी सी चीज भी छोड़ोगे नहीं, छोटा सा एक स्मॉल पार्ट भी आपको लगा यार एलोकेटिव एफिशिएंसी नहीं समझ आ रहा, चलो छोड़ देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना, पूरा करो चैप्टर, 100% करो, क्योंकि उसमें से अगर एक छोटा सा क्वेश्चन भी आए तो यू कैन अटेम्प्ट। इकोनॉमिक्स प्री प्रोग्राम सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 1 बोला तो है बच्चे, कितनी शीट्स फिल करनी है जितनी आपकी कैपेसिटी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर होता है बच्चे, देखो इसमें क्वालिटी भी मैटर करती है, क्वांटिटी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही कर देती है, बट क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। अब 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप खुद से इतने छोटे नहीं हो बच्चे कि आपको इतनी स्पून फीडिंग करनी पड़े, बट हाँ मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस अच्छे से करो, सो इट कैन टेक हाफ ऑफ द पेज और मे बी दी 1 पेज। डायग्राम्स अच्छे से बनाओ, टेबल अच्छे से बनाओ, उसकी कंक्लूजन अच्छे से लिखो, तो आपके, अगर आप ऐसे लिखते हो ना तो आपके 4 और 5 पेजेस तो वैसे ही फिल हो जाते हैं, तो 4-5 पेजेस अगर फिल हो रहे हैं, सो दैट मीन्स यू हैव डन योर क्वेश्चन ऑलमोस्ट करेक्टली, राइट। सो यू हैव टू डू दिस, ओके। अब एक क्वेश्चन मेरे पास अक्सर आता है कि मैम 10 ईयर से कर लें तो एग्जाम्स तो कंफर्म हो जाएगा। बच्चे मैं एक आपको क्वेश्चन करती हूँ, जो एक चैप्टर होता है उसमें से मैक्सिमम भी 4 या 5 क्वेश्चंस बनते हैं टोटल। 4 या 5 क्वेश्चन में से अगर आप लगा लो 4 और 5 क्वेश्चन एक चैप्टर में से आते हैं, तो वो 10 ईयर्स में 10 साल में कम से कम 1 या 2 बार वो क्वेश्चन पक्का आया होगा, मिनिमम 2 बार तो ऑन एवरेज बन ही जाता है, राइट। तो 2 बार अगर एक क्वेश्चन आया होगा तो आपके लिए वो वेटेज ज्यादा हो गई कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा या 10 ईयर में से पेपर आएगा। तो बच्चे वन इज द सेम थिंग कि आप 10 ईयर में से कर रहे हो या नहीं कर रहे, दैट इज जस्ट अ क्वेश्चंस, वो सिर्फ क्वेश्चंस हैं। उसमें आप ये मत सोचो कि मैम ये इसकी वेटेज है, क्योंकि उस चैप्टर में से बनते ही उतने क्वेश्चन है, किसी में से 3 बनते हैं, किसी में से 4 बनते हैं, किसी में से 5 बनते हैं, तो जिसमें से 3 बनते हो गए वो 3 बार पे क्वेश्चन आ जाता है फिर 10 ईयर्स में, देन दैट बिकम्स लाइक इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स दैट हाँ ये 3 बार आया तो ये करना ही करना है, तो वो वन इज द सेम थिंग। सो डोंट आस्क दिस क्वेश्चन दैट 10 ईयर में से आ रहा है पेपर, 10 ईयर में से ही, मतलब क्वेश्चन तो उतना ही है ना बच्चे, क्वेश्चन तो ज्यादा या कम नहीं हो सकते ना, कम तो हो जाएंगे, ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। सो एक चीज आप शुभांगी किस चीज का रिप्लाई करूं बेटा प्लीज, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी रिप्लाइड योर क्वेश्चन। तो मैं वैसे ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी आज इवनिंग में, या मोस्ट प्रोबेबली टुमारो तक तो मैं 100% शेयर कर दूंगी। कुछ मेरे अपने नोट्स हैं, उसको एक्चुअली सेग्रीगेट करना पड़ेगा, तो इसी वजह से मैं नहीं कर पाई, आई वाज समवेयर बिजी, सो टुडे आई विल डू इट फॉर यू। एंड बीए प्रोग्राम के जो आप एसओएल की वेबसाइट खोलोगे ना, तो बीए प्रोग्राम खोलना, फर्स्ट सेमेस्टर खोलना, उसमें नोट्स हैं माइक्रो के 2 सेट, 1 to 8 चैप्टर का, सेकंड है शायद 9 to 12 चैप्टर्स का, 12 या 13 चैप्टर्स का, वो जो है दोनों सेट डाउनलोड कर लेना, वो दोनों ही आपके अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग है।
ठीक है, बाकी आई विल डू इट फॉर यू, और अदरवाइज एडमिन कैन डू इट फॉर मी, देन आई एम रियली 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 हेल्पफुल। आप ऑन एन एवरेज यही लेके चलो, हाफ एन आवर लेके चलो पर क्वेश्चन, राइट, हाफ एन आवर और 36 मिनट एज यू से। मैं एक और चीज बताऊंगी कि आप पेपर को नीट एंड क्लीन करना प्लीज, और ये मत सोचना कि एसओएल की एग्जाम है तो मार्क्स नहीं मिलते, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। अगर आप मुझे फोर्स करोगे कि जस्ट गिव मी मार्क्स, तो मैं कैसे आपके मार्क्स कटिंग कर दूंगी, राइट? यू हैव टू फोर्स मी, यू हैव टू फोर्स अ टीचर दैट द मार्क्स शुड बी गिवन टू यू। उसके लिए आपको उसको एक क्वालिटी पेपर देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और क्वालिटी पेपर में एक फॉर्मेट लेके चलो। सबसे पहले इंट्रोड्यूस, देन जो क्वेश्चन मेन पूछा गया, एंड देन कंक्लूजन, ये 3 पार्ट, नीट एंड क्लीन डायग्राम, नीट एंड क्लीन टेबल। तो कौन सा टीचर है जो आपके मार्क्स कट करेगा? देयर विल बी नो वन जो आपके मार्क्स दे। इवन आई विल बी फोर्स टू गिव यू मोर मार्क्स देन यू डिजर्व, कि आप अगर इतना अच्छा नीट एंड क्लीन, और नीट एंड क्लीन का मतलब ये होता है कि बच्चे डायग्राम क्लियर बन गई, टेबल्स क्लियर बन गए, एंड अच्छे से आपने उसको अटेम्प्ट किया, ठीक है। आयुष, आई हैव इट डाउट 4 और 5 क्वेश्चन का, मोस्ट प्रोबेबली 4 है, बट स्टिल मैं एक बार कंफर्म कर लूंगी, देन आई लेट यू नो, मैं ग्रुप में मैसेज कर दूं। यस बच्चे, यशवी किस बात का बच्चे रिप्लाई मैं देखूं, क्वेश्चन आपका कोई क्वेश्चन तो था नहीं है। अच्छा, ए आर एम आर, और सॉरी सॉरी सॉरी, ए आर एम आर और टी आर, लो आई विल डू इट फॉर यू। सी, this is the TR, increases at an increasing rate, then increases at a decreasing rate, then it become maximum, then it starts declining, ठीक है, राइट। जहां पे TR मैक्सिमम होता है ना, वहां पे MR 0 होता है, यहाँ पे तो डेफिनेटली MR 0 होता है। जहां पे TR इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीजिंग रेट की तरफ शिफ्ट होता है ना, वहां पे MR जो है इंक्रीजिंग से जो है वो डिक्लाइनिंग शेप, मतलब इन्वर्टेड यू शेप होता है, MR एंड AR, ठीक है। दिस इज द पॉइंट जहां पे MR विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग, दिस इज द पॉइंट जहां पे MR जो है वो 0 होगा, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट, let me draw the MR first. So this is the MR, right? And AR is downward sloping, and AR, जहां पे AR मैक्सिमम है वहां पे MR और AR जो है वो कट करते हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स जब AR डिक्लाइनिंग है, when AR is declining, MR is also declining, ठीक है। जब AR increasing है, MR is also increasing, और जब AR टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट है, मैक्सिमम है, तब MR जो है वो 0, ठीक है। सो ये थोड़ा सा मेरे से पॉइंट ठीक नहीं बना, बिकॉज आई हैव पेन इन माय राइट हैंड। सो आप जरा इसको क्लियरली बना लेना, like this inverted U shape of AR curve, and this is the inverted U shape of MR। यहाँ पे MR 0 कहाँ पे होगा? जहाँ पे टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, ठीक है बच्चे। लास्ट टाइम 4 क्वेश्चंस केम इन दी, सो मोस्ट प्रोबेबल यस बच्चे सेम पैटर्न ही रिपीट होगा। 4 क्वेश्चंस आए थे तो बच्चे 4 ही होंगे, ठीक है। So actually I was having doubts, so that's why I was saying, but like अगर आपको लास्ट टाइम में भी 4 आए थे तो इस टाइम में भी 4 ही आएंगे, राइट। आई होप यशवी आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे। एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन?
Any question, guys, regarding any topic of your syllabus? I repeat, डिमांड को नहीं छोड़ना, प्रोडक्शन नहीं छोड़ना, मींस अपने मार्केट नहीं छोड़नी है, एंड इंडिफरेंस कर्व नहीं छोड़ना। ये 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने 100% करने ही करने हैं। 3 चैप्टर ऐसे हैं जो 100% करने ही करने हैं। ओके, और ये मत सोचना कि ओबी पेपर है तो हम ऑन द स्पॉट बुक्स ओपन करके देख लेंगे। प्लीज ये मत सोच के चलना, तैयारी आपको पहले से ही करनी ही पड़ेगी। आपको पढ़ना है, तो आप जब तक पढ़ोगे नहीं, क्योंकि ऑन द स्पॉट अगर आप यही सोचते रहोगे ना तो आप क्वेश्चंस को ढूंढते रह जाओगे, और गूगल बाबा जो है वो 100% करेक्ट नहीं बताएगा ऑन द स्पॉट, क्योंकि जो चीज आपको चाहिए उसके पास n नंबर ऑफ रिजल्ट्स हैं। जो चीज आपको चाहिए उसको भी ढूंढना पड़ेगा आपको। तो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट दीज काइंड्स ऑफ स्टूपिड स्टफ। प्लीज आप पहले से एक बार पढ़ के रखो, एक बार नहीं, आई रिक्वेस्ट यू कि 6-7 टाइम्स हर चैप्टर को कम से कम पढ़ के रखो। और मैंने आपको कुछ बुक्स भी शेयर करी थी, आई गेस, आई थिंक सो, शेयर करी है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की। उन बुक्स में से पढ़ो, क्वालिटी पे चीज पढ़ो। और इवन अच्छे, क्योंकि देखो बच्चे, मैं आपको साफ बता रही हूँ, गूगल आपके पास भी है, गूगल मेरे पास भी है, मुझे भी पता लग जाएगा कि आपने गूगल से कॉपी किया है, या किसी को भी पता लग जाएगा, ठीक है। बट आपको एग्जामिनर को फोर्स करना है कि मुझे मार्क्स दो, उसके लिए आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी। फॉर दैट यू हैव टू रीड गुड बुक्स। पहले आपको उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, गुड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, और बहुत अच्छे से पढ़ना। एंड आई मीन इट, यू कैन डू इट। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास बीए बीकॉम के। एंड वानगी बेटा, बच्चे, आई एम सॉरी, सीरियसली आई वाज रियली स्ट्रक समवेयर। कुछ ऑफिशियल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, देन वी हैव टू फिनिश इट, and today only I have tried to finish in by the morning, and even I have to do something in the evening. So I'll try to my best to send you the notes by the today evening or late night. I'll definitely send it, right? I do remember these things, but I was actually doing some official work because of online है ना, तो बहुत सारा work हो जाता है, workload है, so that's why I was little stuck somewhere. Okay, आई डू रिमेम्बर द थिंग्स बच्चे, इतना तो मुझे याद है, मुझे आपको सेंड करने हैं नोट्स। मुझे नहीं पता किसके मैसेज आ रहा है, पर मुझे पता है मैसेज आ रहे हैं एक के, बट द थिंग इज आई वाज रियली स्टक्ड समवेयर। ओके, सो डोंट वरी गाइस, ये कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, बट स्टिल इफ एंड आई प्लीज, मैं सबको बोल के जा रही हूँ कि प्लीज मुझे एग्जाम के डे वाले दिन कोई मैसेज नहीं आना चाहिए। उससे पहले आप जितनी बार मर्जी मुझसे कुछ पूछो, आई विल रिप्लाई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस। मैं ज्यादा ऑनलाइन नहीं रहती हूँ, बट जब भी होंगी तो आई विल रिप्लाई योर क्वेरी। अगर मुझे लगेगा कि कॉल पे समझाना है तो मैं आपको टाइम दे दूंगी, अगर मैसेज पे ही क्लियर हो जाएगा तो देन इट्स फाइन। एंड ऑन द अदर हैंड, प्लीज एग्जाम डे वाले दिन कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। I hope there is no more query. All the best guys for your exam and for the rest of the life. I hope आपके सबके एग्जाम बहुत अच्छे हो. I know and have a nice day. Still, I am saying if you have any query, do message me. Okay guys, bye. Take care.